اللہ کے نبی پاک والی نماز بتاؤں تو پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کی، پھر نہیں کی، ثم لا یعود. تو دیکھو نفی بھی آ گئی، اس بات بھی آ گیا. جب ہم اپنے دعوے کے دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں، نفی اس بات، تو آپ سے بھی ہم دونوں دعووں کی دلیل مانگتے ہیں تاکہ مکمل آئے. آپ 18 جگہ رفع دین نہیں کرتے، کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا، 8 دونی 16، اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے. 18 جگہ آپ رفع دین نہیں کرتے اور 10 جگہ کرتے ہیں. تو جس طرح ہم نے اپنا مکمل دعویٰ پیش کیا ہے نفی اس بات کی حدیث، آپ صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں 18 جگہ کی نفی ہو اور 10 جگہ کا اس بات ہو. اب وہ ڈاکٹر بھی گنے 18 کی نفی تو نکلے ہی نہ، اور 10 جگہ کا اس بات بھی پورا نہ ہو، 9 جگہ کا بنے. تو یہ ساتھ کہے کہ دیکھو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک سنت چھوڑنے والا لعنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم سیاستہ کا نام یہ دھوکے کے لیے لیتے ہیں. اس کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ نمازی نہیں بنتے، لعنتی بنتے ہیں. بلکہ آصف شاہ نے کہا کہ آج تک تو کہتے تھے کہ حنفیوں کی نماز خلاف سنت ہے، اب یہ حدیث سنا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی خلاف سنت پڑھتے تھے، کیونکہ ایک سنت چھوڑتے نہیں ذاکاؤں میں رکعتین والی. اس پر وہ چاروں گھبرا گئے. تو گنتی کرے وہ پوری نہ ہو، نہ 18 کی نفی نکلے اور نہ 10 کا اس بات نکلے. تو ان کو بات بدلنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے. اب ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کرنے لگا کہ بڑے متبع سنت تھے اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا. کہتے وہ فضائل بیان کرنے لگا اور میں نے کتابیں دیکھنی شروع کر دی کہ کون کون سی کتابیں ہیں. تو مسلم حمیدی رکھی تھی، میں نے اٹھا لی اور وہ صفحہ نکال لیا 277. وہ جب 2-3 منٹ اس نے فضائل بیان کیے تو کہتا ہے میں نے کہا کہ آج جا کر کم از کم 10 نفل شکرانے کے پڑھنا. کہ کیوں؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر آج یہاں نہیں تھے. ہوتے تو کیا ہوتا کہ دیکھو یہ ان کی روایت ہے مسلم حمیدی میں کہ وہ پتھر مارتے تھے ہر اس آدمی کو جو ہر قفض اور رفع اونچ نیچ میں رفع دین نہیں کرتا. ہر اونچ نیچ پر رفع دین کی جائے تو 4 رکعت میں 28 جگہ بنتی ہے، اور آپ کرتے ہیں 10 جگہ. تو گویا 4 رکعت میں 18 لعنتے اللہ بھیجتا آپ پر اور 18 پتھر عبداللہ بن عمر مارتے تمہیں. تو ہر 4 رکعت میں تم 18 لعنتوں کے 18 پتھروں کے حقدار ہو. بس اس پر تو جو اچھلے نا کہ دیکھو جی کیسی سخت باتیں کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ترجمہ کر رہا ہے، یہ اپنے الفاظ واپس لے. اس نے کہا کہ یہ روایت رکھی ہے سامنے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ یہ پتھر مارنا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاسا بہو لکھا ہے، ہاں سواد باہ. انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ پتھر مارنا نہیں ہے، نرسنسار کرنا نہیں ہے. یہ ترجمہ کرتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تمہیں سنسار کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لکھ دو، ان سے بھی لکھوا لیتے ہیں ترجمہ، ہم کسی پروفیسر سے پوچھ لیں گے. لکھ دیا سنسار کرنا. ان سے کہا کہ تم لکھو کہ سنسار کرنا غلط ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا. تو ڈاکٹر ہنس پڑے کہ پھر تو ایک ہی بات ہوئی، پھر کیا کون سی غلطی ہوئی اس میں. اب اس کے بعد وہ گھبرائے، سیاستہ ساری بول گئی بیچاروں کو. سننے کو بڑا بہکی اٹھائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رفع دین کرتے تھے. کہ وہ آپ والی تو ثابت ہی نہیں ہے، اول تو روایت ہی صحیح نہیں ہے. آپ اس میں 18 کی نفی 10 کا اس بات دکھا دیں. میں ابھی باوضو ہوں 4 نفل پڑھوں گا رفع دین کے ساتھ. کیوں آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو؟ اب وہ گنے پوری نہ ہو، پھر اسی بہکی سے اس نے نکال کے دکھایا عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی. وہ پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے. دیکھو نفی اس بات دونوں آ گئی ہے نا، ایک جگہ کرنا اور باقی کسی جگہ نہ کرنا. ہم جو نبی پاک والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہے، ہم جو صدیق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں،
हम जो फारूक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही हैं, आप दिखाते कुछ है करते कुछ है, आपकी रफ़ा दैन तो है ही नहीं। आखिर उसने कह दिया कि शिया भी रफ़ा दैन करते हैं, शिया के रफ़ा दैन करने की 2-3 हदीसें हैं, हर तकबीर में रफ़ा दैन करना इब्ने माजा में। शाफियों की रफ़ा दैन करने की 2-4 हदीसें हैं, लेकिन गैर मुकल्दों की रफ़ा दैन की एक हदीस भी दुनिया की किसी किताब में नहीं है। और सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं थोथा चना बाजेगा ना। अब इस पर उन्हें बड़ा गुस्सा लगा कि शियों की रफ़ा दैन साबित है। फिर उसने बताया कि उनकी जो साबित है वो भी इतनी जितनी जूते पहनकर नमाज पढ़ना, बस। गोया जो रफ़ा दैन करके नमाज पढ़ता है वो ऐसा है जैसे जूते पहनकर नमाज पढ़ने वाला, और जो रफ़ा दैन के बगैर नमाज पढ़ता है वो ऐसे जैसे जूते उतार कर नमाज पढ़ने वाला। जूते पहनकर नमाज पढ़ने से ज्यादा किसी की रफ़ा दैन का सबूत किसी हदीस में मौजूद नहीं है। खैर वो किताबें बंद करके चल दिए। अब डॉक्टर साहबान को एहसास हुआ कि वाकयातन हम एक ही तरफ की बातें सुनते रहते हैं, दूसरी तरफ की कभी नहीं सुनते। तो उन्होंने आसिफ शाह साहब से कहा कि आप अपने उस्ताद साहब से कहे कि कभी यहां हमारे यहां आए। कहा कि उनके पास तो वक्त नहीं होता, वो दुकानों पर नहीं फिरते, वो तो वहां भी आप जाएंगे तो शायद वक्त मिले या ना मिले, क्योंकि इन्होंने न मिर्जाइयों के खिलाफ कोई काम करना है, न ईसाइयों के, न बरेलवियों के, न खारजियों के। उसने तो सारे मज़ामीन पढ़ाने होते हैं, इसलिए वो तो फारिग नहीं होता। अब जब वो हैरान हुए कि ये बगैर बुलाए रोज आए रहते हैं और रोज सुना बुलाने से भी नहीं आता, उनको और शौक हुआ, अच्छा फिर आप उनसे इजाजत ले, हम वहां हाजिर होंगे। अब कोई महीना गुजर गया, मैंने कहा मैं फारिग नहीं हूं। वो और ज्यादा प्रिय कौन आदमी है जो मुलाकात का वक्त ही नहीं देता। महीने के बाद उसने कहा जी वो रोज फोन करते हैं, तंग करते हैं, आप वक्त दे दे। मैंने कहा एक शर्त पर वक्त मिलेगा कि पहले 1 घंटा वो मेरी बात सुनेंगे, ताकि मुझे पता चले कि 1 घंटा कम कम मैंने सही काम पर लगा दिए। तो वो आकर अपने इधर उधर के सवाल पूछने शुरू कर दे तो असल बीमार जो है वो असल बीमारी छुपाता है ना, इधर उधर की बातें पूछता है ना। तो उनकी जो असल बीमारी है उस पर 1 घंटा मैं बात करूंगा, पहले वो उनको सुननी पड़ेगी, उसके बाद फिर उनको सवालात का मौका देंगे हम। उन्होंने कहा जी हमसे 2 घंटे पहले बात कर ले, हम आराम से सुनेंगे, वो वक्त जरूर हमें दे, हम मिल रहे हैं। आ गए, अलैक सलैक करके बैठ गए सारे। वो शराफत अली भी साथ है जो गैर मुकल्लिद था। बैठ गया जब, तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आजकल क्या कुछ हो रहा है? कि जी दीन की तहकीक हो रही है। इनका दीन की तहकीक का तरीका ये नहीं जो आपने इख्तियार किया है। जी और क्या है? मैंने कहा आप 4 साल वहां से छुट्टी करें, फार्मेसी से यहां आ जाए और वहां अपनी फार्मेसी में कुमारों को बैठाएं नुस्खे लिखने के लिए। जैसे कहते किन को बैठाएं? सब कुमारों को। जी वो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं, जो कुछ आप दीन के साथ कर रहे हैं वो आपकी डॉक्टर के साथ करेंगे, इतना कुछ ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो अगर पढ़े लिखे थे वो समझ गए। उनको क्या पता डॉक्टरी क्या है, मैंने तुम्हें क्या पता दीन की तहकीक क्या है? तुमने दीन को डॉक्टरी से भी निकम्मा समझा कि जो उठे इसकी तहकीक शुरू कर दी, इसका कोई असूल ही नहीं है दुनिया में। मैंने कहा ये तो बाकी गलती है हमारी। फिर चूंकि मुझे पता था उन्होंने आना है, मैंने एहयाल उलूम रखी थी तर्जमे वाली। उनका ये एहयाल उलूम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है, आज से 1000 साल तकरीबन पहले का आदमी है। ये लिखा है कि जो शख्स दीन का पूरा इल्म नहीं रखता और फिर दीन में तहकीक का नाम लेता है, उससे जानी 1000 दर्जे बेहतर है। क्यों? जानी सिर्फ अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, और ये कितने मुसलमानों के ज़हन में शुबहात पैदा करके उनका ईमान बर्बाद करेगा। उनका डॉक्टर साहब जिसका नाम आपने तहकीक रखा है वो ये गुनाह है जो आप कर रहे हैं। फिर मैंने मीज़ान कुबरा शरानी उठाई, वो भी तर्जमे वाली, तर्जमा शाया हो गया, रखी थी मैंने। लिखा है
अल्लामा शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो दीन से पूरा वाकिफ ना हो फिर दीन में दखल दे। इस्लामी हुकूमत का फर्ज है कि बाउले कुत्ते को बाद में मारे और उसको पहले कत्ल करे, क्योंकि बाउला कुत्ता जिस्म का दुश्मन है और ये ईमान का दुश्मन है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, आजकल अल्फाज बदल गए हैं ना, जिसको पहले जमाने में कंजरी कहते थे, बाजारी औरत कहते थे, आजकल लफ्ज बदल गया है कि ये एक्ट्रेस है। वो भी बहुत चौड़ी होती है कि मेरी इज्जत हो रही है, मैं एक्ट्रेस हूं। जिसको पहले दल्ला कहते थे, बचोला, उसका नाम आजकल एक्टर है, वो बड़ा खुश है। बात वही है। अब देखो ना, जिसका नाम पहले तबर्रा था कि सहाबा पर तबर्रा करते हैं, अब उसका नाम हो गया है तनकीदे साले। सात साले का लफ्ज भी है कि मौदूदी साहब तनकीदे साले करते हैं, तो वही तबर्रा ही ना। नाम जरा नरम हो गया है। जिसका नाम पहले तहरीफ कुरान था, अब उसका नाम तफहीमुल कुरान हो गया, क्योंकि तहरीफ से लोग तंग है ना लफ्ज से। जिसका नाम था कि तकिया है, कहते नहीं पॉलिसी है जमात की। आज पॉलिसी है कि औरत सदर ममलकत बन सकती है, कल पॉलिसी बन जाएगी कि नहीं बन सकती। तो उन अल्फाज को आजकल बदला जा रहा है, उनकी जगह ज़हनी आवारगी का नाम तहकीक रखा हुआ है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था कादियानियों के बारे में, तो मेरा जो सदर था मुझे नहीं पता था कि ये मौदूदी है। तो मैंने कहा कि बाकी खुदा के नबी जितने भी सच्चे हैं वो अल्लाह की रहमतें लेकर आए थे। ये मिर्जा जो है ये बददुआएं करता था कि फलां मर जाए, फलां मर जाए, या अल्लाह जल्जला आ जाए, या अल्लाह सैलाब आ जाए, या अल्लाह ताउन पड़ जाए, या अल्लाह काल पड़ जाए। ये मनहूस नहुस्ते लेकर आया था और नहुसत से खुश होता था, जैसे उल्लू उजाड़ से खुश होता है ना। ये सारी जिंदगी इसी से खुश होता था कि कहीं की मुसीबत आ जाए। इसलिए मौलवी साईं मोहम्मद हयात पसरूरी ने पंजाबी में कहा है ना, किसे दरिया विच आई तुगयानी है मिर्जा के मेरी ते नबूवत दी निशानी है। इस सैलाब आ गया तो मौजा हो गया कि मेरा सब। किसे मुखालिफ दी गां मज मोई है महमूद आखे मेरे ते प्यो दी पेश गोई है। किसी की भैंस भी मर जाती, भेड़ भी मर जाती ना, तो मिर्जा महमूद कहता कि मेरे वालिद साहब की पेश भी पूरी हो गई। तो ये मैं बयान कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सदर साहब मौदूदी है। तो मैंने कहा कि जैसे मिर्जा कादियानी इसी बात में हर वक्त रहता था कि सैलाब है, ये है। हमारे मुल्क में एक जमात है जो रात दिन दुआएं मांगती है, अल्लाह कहीं जंग छिड़ जाए, कहीं सैलाब आ जाए। 2 दिन सैलाब आ जाए तो 10 साल की रोटियां इकट्ठी कर लेती है। हर चौक में एक ट्रक खड़ा होता है जमात इस्लामी का कि भाई जो इसमें डालना है डालते चले जाओ। तो मैंने कहा ये भी हर वक्त दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह कहीं जंग लग जाए, ताकि 1-2 दिन भी जंग लगे तो 10-20 साल की रोटी हमारी बन जाती है। तो वो सदर साहब की तरफ बात वो 20 साल हरा रहा था। जी हाँ जी हाँ। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि वो खुद मत हो दिया था। तो मैंने कहा कि देखिए जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, ये कितना बड़ा गुनाह है। इतने बड़े गुनाह को तहकीक का नाम दे दिया गया है इस दौर में। फिर मैंने बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ निकाल के रखी कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लेते थे तो उसमें एक शर्त यह भी होती थी अल्लाह नुनाज़ि अल अम्र अहलहु, कि अहल से नाअहल मुनाजत नहीं करेगा। गैर मुकल्लियत तहकीक का नाम नहीं है, ये मुनाजियत है नाअहल की मुइथिद के साथ। फितना इनकार हदीस तहकीक का नाम नहीं है, मुहद्दिसीन फन के अहल है, उनके साथ ये नाअहल मुनाजियत करते हैं, झगड़ा करते हैं। जिस गुनाह से हजरत पाक ने रोका था वो ये गुनाह करते हैं सारे। इसकी मैं आम फहम मिसाल दिया करता हूं। जब उनसे कहे ना भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये गैर मुकल्लद कहते हैं अबू हनीफा कोई मासूम थे, मुनकर हदीस कहते हैं इमाम बुखारी कोई मासूम थे। तो मैं कहता हूं कि झगड़ा मासूम गैर मासूम का नहीं है, झगड़ा माहिर गैर माहिर का। झगड़ा यहां मासूम गैर मासूम का नहीं, झगड़ा है माहिर गैर माहिर का। तो फिर मैं समझाने के लिए आम फहम मिसाल देता हूं ताकि आप खुद भी समझ आए। इसमें कि देखिए एक डॉक्टर साहब क्वालिफाइड डॉक्टर है, उन्होंने वहां अपना क्लिनिक बना लिया। मैंने देखा भाई देखो हुक्माई हो रही है, अब मैं भी इधर दुकान खोल के बैठ गया।
نام کیا رکھا؟ اللہ توکل دواخانہ، اللہ توکل دواخانہ۔ اب کوئی میرے پاس نہیں آتا کہ یہ نہ پڑھا نہ لکھا نام محمد فاضل۔ اب میں جب دیکھتا ہوں کہ سارے گاہک ادھر جا رہے ہیں، ادھر میری طرف کوئی نہیں آتا، اب میں غصے میں چیختا ہوں یہ سب اللہ کے منکر ہیں، کیونکہ یہ اللہ توکل دواخانہ ہے۔ جو اللہ کو مانے گا وہ یہاں آئے گا، اور جو اللہ